बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारी लैब की जो एक्टिविटी थी वो रिगार्डिंग आवर डॉक्यूमेंट एडजस्टिंग और डॉक्यूमेंट राइटिंग यूजिंग अ वर्ड एंड segregating it into different sections and applying various settings to the to segregated pages, and secondly applying automatically inserting table of contents, automatically inserting table of figures and table of tables, yeah, list of tables to insert automatically. This was actually our whole scheme of study last time. I am actually revising the whole scenario in fewer words from a newer document. I have today opened a newer document which is not the part of the previously used assignments. So first of all, if we are starting a Word document, we have written a Word document, or we are starting to write a Word document, then first of all, we have to go in a home page. From home page, we have to select, first of all, what type of font I am using and what will be its normal font size. This will be adjusted into styles. In the style section, if you can see, style section have a various categories. There is a normal category also. You can go to normal and modify the normal. In the normal section, you can actually have the setting which you are using for whole document in which it will be appearing. For example, we will use a Times New Roman as a font style and 12 as a font size. Neither bold nor italic nor underlined. Automatic color means a black color font will appear as displayed here downwards. This is actually for spacing. What kind of spacing is required? Narrow spacing, one spacing, double spacing. So go to normal spacing. This section actually correlates from where the new paragraph or new sentence will start from the page. It will start from the left, it will start from the right, it will start from the center. So normally, if we are writing a document in English, we start from left side. Then secondly, you are actually advised that each paragraph should start 0.5 ident from the left. The first statement or the first line of the paragraph should start differently from all the lines. It should start at a difference of 0.5 from the left side. So we will go into the format section and in paragraph section. Here we will actually go in this indentation section. Indentation section, and we will make it first line indentation by 0.5 centimeter. If we are applying this, the first line will be like this. Here you can see will be like this. It will be moved from left 0.5 centimeter. So if I'm applying here, the setting also appears that it will actually move from left margin 0.5 inwards, the first paragraph. For example, this is a setting for normal. I have clicked it for normal. I have saved. And now whenever I will click normal, by clicking this, any paragraph written or any statement written, I will click normal, it will make it to that style. For example, I have clicked this one, so the ident goes 0.5 deeper, and the document starts from that place. So here you can see this is the left ident and it is 0.5 from the left ident. So the document is actually starting from 0.5. If this one is continuous, then it will look like
this way. The second line will start from the marginal left line, marginal left ident. This is the setting for normal for you. And then you actually set for your headings. Headings are actually for chapters. First of all, you have to mark from first of all, you have to mark from this multi-level list. A list you have to select. For example, you have to select a heading list with 1.1 heading, 1.1.1, multiple headings of 1, 2, 3, 4. You have to select such kind of a style. Then you have to develop headings. For example, this is heading 1. You have to modify the heading 1. Keep heading 1 with Times New Roman and font size 14, bold, not underlined. Normal spacing, not centralized, because we will actually use for chapter numbers. Heading 1 for chapter numbers. And click OK. So this is actually not a heading. This one is a normal style. What is a heading? Heading is actually of introduction. This one is introduction. If we will click heading 1 for introduction, so it will give number 1 to the heading, and heading will be developed according to our style selected. So if you want to underline it, you have to modify it again. Click here, the underline, and then press OK. It will be underlined. For example, there is a subheading here. Review of literature is also a heading 1, and it is a second chapter. For going to second chapter, we actually use from layout of the Word document breaks, and from breaks we used section break. This one is a section break, and we insert a next page section break, and next page section break will take you to the next page, and the heading will start from the next page. This one is heading 2. And then if we go to the methods, here we again insert a section break, next page section break, and then starts methods. For example, your methods, you will select for methods heading 1, and it will be given as heading actually 3, and here heading 1 is selected, so it was giving heading 4 to methods. So here it is have given heading 3 to methods. And for example, this one is statement of problem, and you are giving it a heading. Normally it's not a heading, but you can give it. This one is not a ये आपकी heading है. You have to click heading 1 for this one. So heading 3 will be for, you remove it from heading. So it will be 3. And then when you will move downwards to your result section, before methods, you have to insert a section break. Here a section break, which is next page section break. And after the methods, you have to insert a section break, just as here is a section break and next page. Here will be results and discussion. Go to results and discussion, and again select heading 1. So it will be
nominated as results and discussion as heading 1. And then after results and discussion, actually your section will be, for example, here is a summary. You have to click summary as a heading 1 after inserting section break. And then after summary, you have also again inserted a section break. Then we'll start references. Just for example, here are references, and you will click heading for it. तो ये हमने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया इसको सेक्शन ब्रेक्स में। इस तरह से हमारी हेडिंग 2 भी है। फॉर एग्जांपल हमने को इसके नीचे हेडिंग दी हुई है, जैसे ये डॉक्सोरोबोसिन एक हेडिंग है लिटरेचर रिव्यू में, तो ये हमारी हेडिंग 2 है, तो हम हेडिंग 2 को मॉडिफाई करें। हेडिंग 2 शुड बी okay, it's 12 automatic Latin bold. Click it, and from here you will select heading 2. It will give number 2. For example, this one is heading 3. You will modify heading 3. Similarly, 12 size bold. From here you will select heading 3. This will give a number of 2.1.1, a section, next section to that. For example, this one is heading 4. इस तरह से आप डिफरेंट हेडिंग्स लगा लेते हैं। ये हमारा एक सेक्शन था। अच्छा, आफ्टर द हेडिंग्स हम अब मूव करते हैं आगे के हमने नेक्स्ट में क्या किया था। हमने इंसर्ट में से हमने कहा था हम हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैक पेज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई पेज ब्रेक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम कुछ। सर हेडिंग में एक क्वेश्चन है। जी जी सर मैं ये सिर्फ हम 3 बार हेडिंग दे सकते हैं, मसलन हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, या आगे हमें फर्दर करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नहीं, हेडिंग 4 भी दे सकते हैं, हेडिंग 5 भी दे सकते हैं। वो कैसे? वो सर हमें फिर बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ नॉर्मली तो नहीं है। नहीं, ये देखिए हेडिंग 4 लिखा है, हेडिंग 5 लिखा है। इसी लिस्ट में से आप देख सकते हैं स्टाइल की लिस्ट जो खुलती है उसमें हेडिंग 4 और हेडिंग 5 भी है। तो हेडिंग 4 सर आप मैं हेडिंग 4 को मॉडिफाई कर लें। हाँ जी, मेरे पास यही है सर, जो है मैंने भी इसे ही ओपन किया हुआ है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ हेडिंग 3 तक ही आ रहा है। अच्छा हेडिंग 3 तक आ रहा है। जी सर। नहीं ऐसे तो नहीं है। फिर इधर क्रिएट स्टाइल में जाएं, जी इधर हेडिंग लिखें, इधर लिखें हेडिंग, फॉर एग्जाम्पल इधर तो 5 है तो इधर मैं 6 लिख देता हूँ। तो ये इसमें आ रही है, कल में आप अच्छा अब्दुल्ला, आप जरा 3 तक हेडिंग लगाएं तो वो 4th फिर खुद ही आगे से आना शुरू हो जाएगी। सर मैंने ये ट्राई किया, 3 तक लगती, आगे नहीं आती 4। मैंने एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया था सर, 3 तक ही हुआ है सिर्फ। तो आगे 4 और 5 नहीं आई। नहीं जी अलीना, आपने कुछ बताना है?
सर मेरे भी नहीं आ रही थी सर, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है फिर दोबारा, जो नेक्स्ट हेडिंग्स आ रही है ना उनको मॉडिफाई करके फिर हेडिंग 3 या 4 बनानी पड़ती है। हाँ तो मॉडिफाई तो करेंगे ना, 4 3 तक है तो फिर 4 आना शुरू हो जाएगी, फिर 5 आना शुरू हो जाएगी, इस तरह से। सर नहीं 3 के बाद ना वो आगे सब टाइटल्स टाइटल्स इस तरह की हेडिंग्स आ रही हैं, आगे 4 5 ये वाली नहीं आ रही। तो फिर आपने इनमें से किसी को मॉडिफाई किया, यानी कि सब टाइटल में से या किसी और में से इनको? यस सर, इनमें से भी मैंने मॉडिफाई किया था तो फिर वो और उसको फिर अब यस सर वो अप्लाई हो गया था, उसका नेम भी चेंज करके हेडिंग 3 मैंने रख दिया था, फिर वो अप्लाई किया था तो वो हो गई थी। अच्छा, ये मैंने पहले इस डॉक्यूमेंट पे कोई हेडिंग नहीं लगाई हुई थी, तो मैंने तो देखा है तो ये 4 और 5 इस पे पहले से आ रही हैं, क्योंकि 5 लेवल तक हेडिंग आती है। वो अगर आप रेफरेंसेस में जाएं और हम जब टेबल ऑफ कंटेंट्स करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करें आप, यहाँ से आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाएं, तो ये जो लेवल है इसको 5 कर दें, तो इसका लेवल यहाँ पे 5 होने से, यानी कि जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट इसमें लगाना शुरू कर दिया, तो इसका लेवल 5 कर देने से देखें कि आपकी यहाँ पे हेडिंग फिर 4 और 5 आती हैं। अच्छा, नहीं तो फिर ये जैसे बॉडी टेक्स्ट होता है, आप इसको मॉडिफाई कर लें, बॉडी टेक्स्ट को, इसको आप लिख दें और इसको आप अब ये देखें, मैंने उसको क्लिक करना शुरू किया तो वो उसने कहा दिस स्टाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स और इज रिजर्व्ड फॉर अ बिल्ट इन स्टाइल। तो वो रिजर्व है बिल्ट इन स्टाइल में, यानी कि मैं 5 लगा दूंगा तो छठी ऑटोमेटिकली रिजर्व्ड है, तो वो आने शुरू हो जाएगी। सर आप जरा ट्राई करें 5 लगाएं। ये देखो मैंने लगाई है, ये हेडिंग 6 लिखा आ रहा है। जी जी। अब मैं इसको हेडिंग 6 लगा देता हूँ, ये आगे हेडिंग 7 लिखा आ रहा है। तो ये बिल्ट इन है, रिजर्व्ड है, आप जब उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जिस लेवल तक इसमें हेडिंग्स हैं, तो वो अगला लेवल, अगली लेवल ऑफ हेडिंग आना शुरू हो जाएगी, उससे अगली लेवल ऑफ हेडिंग आना शुरू हो जाएगी। सर नहीं आ रही ना, उसी का सलूशन बताएं सर। ओहो मैंने 3 उसका तक मैं, तो मैंने यूज आप किया फिर, सर। हाँ वर्ड को जरा एक दफा दोबारा से इंस्टॉल कर। ये यही हो सकता है ना कि वर्ड में कोई मसला आ रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। सर मैं भी यही वर्जन यूज कर रहा हूँ 2019 ही, बस भी यही है, लेटेस्ट ही है। नहीं ये 16 है वैसे तो, लेकिन ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हेडिंग 4 और 5 आगे से ना आए। अच्छा चलें आगे चलते हैं, ये तो फिर इस तरह टाइम ज़ाया हो गया। ये हमारा सबसे पहला ये स्टाइल वाला सेक्शन था। स्टाइल में हमने कर लिया, फिर हम इंसर्ट के सेक्शन में गए थे, तो इंसर्ट के सेक्शन में हमने कहा था कि हमने एक शुरू में कवर पेज लगाना है, तो कवर पेज जरूरी नहीं हमने यहाँ से डालना है, कवर पेज हम खुद से भी डाल सकते हैं। तो कवर पेज हमारा ब्लैंक भी हो सकता है। कोई कवर पेज जो कि वाइट से कलर का हो, वैसा कवर पेज हमने फॉर एग्जांपल ऐसा फॉर एग्जांपल डाल दिया। हमने इसके ऊपर अपना टाइटल लिखना है, तो ऐसे ही
यानी कि ये फिर आगे आपने नेम लिखना है, नेम को आप बोल्ड सेट कर लें और इसको सेंट्रलाइज कर लें। फिर नीचे आपने बाकी डिटेल देनी है। ये आपका टाइटल पेज है। टाइटल पेज के बाद आपने सेक्शन ब्रेक लगानी है। लेआउट में से जाएं आप, सेक्शन ब्रेक लगाएं। तो टाइटल पेज, उसके बाद एक सेक्शन ब्रेक और फिर अगला पेज। फॉर एग्जांपल ये आ गया, ये पेज है। इसके बाद फिर आप एक सेक्शन ब्रेक लगाएं जैसे ये लगी हुई है। अगला पेज आ गया। इससे पहले भी आपने काफ़ी सारे पेज डालने हैं तो आप उनकी भी सेक्शन ब्रेक लगा लेंगे। ये प्रीवियसली आपको बताया था कि कौन से पेजेस डलने हैं। तो ये इतने सारे पेजेस फॉर एग्जांपल डलने हैं, तो हमने उनकी सेक्शन ब्रेक लगा ली। अब हमने पेज नंबर लगाने हैं, तो हम पेज नंबर के सेक्शन में चले गए हैं। तो हम फॉर्मेट पेज नंबर पे चले गए हैं। तो सबसे पहले जो पहला वाला सेक्शन है, उस सेक्शन में हमने अगर लगाने हैं फॉर एग्जांपल पेज नंबर, ये जो सेक्शन है, तो इसको हमने क्लिक कर लिया है इसका फुटर। जहाँ पे हमने पेज नंबर में से हम फॉर्मेट पेज नंबर में गए हैं, हमने इसमें लगाने हैं रोमन्स पेज नंबर। तो हमने रोमन सेलेक्ट किए हैं और हमने इसको स्टार्ट किया है फ्रॉम 1 और फिर डिफरेंट फर्स्ट पेज क्लिक किया है, तो फर्स्ट पेज पे फिर नहीं लगेगा। और बहुत ही माइक्रो लेवल का लग रहा है। सेटिंग में कोई हमने सही सेटिंग सेलेक्ट नहीं की। अच्छा, इसको नहीं आना चाहिए। ये जो शायद हमारा, हाँ जी, मैं पता नहीं, वैसे सर मैंने देखा नहीं।
हाँ जी, हाँ जी, फ्रिज वाले में रहे ना तो 2-3 दिन ठीक रहते। अच्छा, इस तरह से हमने इसके पेज नंबर, ये हमारा एक्चुअली फुटर था। सिमिलरली ये हमारा हेडर है, तो हेडर हमने लिंक टू प्रीवियस नहीं रखना, इसमें भी हमने हेडिंग देनी है, जैसे इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, इसको इटैलिक होना चाहिए, और ये राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो डिफरेंट हमारा फर्स्ट पेज होना चाहिए, तो ये डिफरेंट फर्स्ट पेज करने से इस पेज पे नहीं होगा, लेकिन अगले पेज से होगा। पेज नंबर यहाँ 1 लगा हुआ है और यहाँ पेज नंबर 2 लगा हुआ है, इसको फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि वो डिफरेंट फर्स्ट पेज नहीं हुआ इसके करने से। लिटरेचर रिव्यू, ये लिटरेचर रिव्यू आ गया, तो इसमें हम आएंगे तो हम इसको लिंक टू प्रीवियस ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख देते हैं। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा सेक्शन प्रीवियस लिंक अनलिंक किया हमने, इसकी जगह हमने स्टेटमेंट फिर हम इस सेक्शन में आ गए। इस सेक्शन को हमने लिंक फ्रॉम प्रीवियस एंड किया, और इस पे हमने लिखा मटीरियल एंड मेथड्स। इसका भी फर्स्ट पेज हमने क्लिक किया, तो ये आगे मटीरियल एंड मेथड लिखा जाएगा। अब फिर ये हम आगे यहाँ पे हमने इसको भी लिंक फ्रॉम प्रीवियस ख़त्म किया, और मटीरियल एंड मेथड की जगह हमने रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिखा। इसको भी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो वो आगे तो है नहीं, आगे ये हमारा समरी आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसको भी हमने लिंक फ्रॉम प्रीवियस ख़त्म किया, और यहाँ पे हमने समरी की हेडिंग दी, और ये भी डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज किया। यहाँ पे हम फिर इसको लिंक फ्रॉम प्रीवियस ख़त्म करेंगे, और यहाँ हम रेफरेंसेस लिखेंगे, इसको भी हम डिफरेंट फर्स्ट पेज करेंगे। तो फिर अगले पेजेस पे फॉर एग्जांपल अगले पेजेस पे इस तरह से रेफरेंसेस लिखा आएगा, और पहले पेज पे रेफरेंस नहीं लिखा हुआ है। सर ये जो जब पेज नंबर लगाते हैं तो पेज के स्टार्ट पे भी लास्ट पे भी दोनों तरफ देना है सेक्शन ब्रेक?
पेज के स्टार्ट पे तो नहीं दिया हमने, पेज जहाँ पे आपका सेक्शन खत्म हो रहा है वहां पे सेक्शन ब्रेक दिया। ये सेक्शन खत्म हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ सेक्शन ब्रेक दिया हमने, इससे पहले नहीं सेक्शन ब्रेक। तो हाँ सेक्शन ब्रेक तो इसमें, और ये जब ये लिटरेचर रिव्यू शुरू हुआ है यानी कि, और पिछला इंट्रोडक्शन जहाँ खत्म हुआ है वहाँ हमने सेक्शन ब्रेक दिया। सिमिलरली इंट्रोडक्शन से पीछे वाला सेक्शन जहाँ से खत्म हुआ था यहाँ पे हमने सेक्शन ब्रेक दिया। लिखा कुछ नहीं हुआ ना, यानी कि एंड पे आएगा, लिखना इससे पहले पहले हमने इससे पहले पहले लिखा है, तो ये इससे पहले पहले लिखा है। तो ये सेक्शन ब्रेक एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके सर। ये सेक्शन ब्रेक एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे वो खत्म हो रहा है। उससे पहले ये इनमें सेक्शन ब्रेक लगाया हुआ था, इसलिए हमें हर एक पेज नंबर को अलग-अलग सेट करना पड़ा, क्योंकि हर सेक्शन का पेज नंबर होता है। तो इसमें भी 0 लिखा हुआ आ रहा था, इसमें भी 0 लिखा हुआ आ रहा था, तो हमने उसको नंबर, पेज नंबर लिंक किया पीछे से, क्योंकि जहां तक हम लिंक करना चाहते थे हमने वहां तक लिंक किया इसको। आई थिंक ये अंडरस्टैंडेबल होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करना था, तो जैसे ये है तो हमने यहीं पे टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है। तो हम रेफरेंसेस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे, तो हम कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में चले जाते हैं, हम सेटिंग करेंगे। तो हमने 5 जितने लेवल तक आपने हेडिंग लगाई है उतने लेवल तक की आप हेडिंग लिखेंगे। ये टेबल लैडर होता है कि आप जो लीड करेगा टुवर्ड्स द पेज नंबर वो किस तरह का होगा, यानी कि वो डॉट होंगे या वो लाइन होगी, वो आपने सेलेक्ट करनी है। और इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह का हो, 12 फॉन्ट साइज हो, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से इस तरह से, ये इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप इसको ओके करेंगे। तो ये जो हेडिंग सेलेक्ट हुई थी वो वाली यहाँ पे उसने हेडिंग उठा ली। इवन जो हेडिंग सेलेक्ट हुई थी किसी नंबर के साथ नहीं, वैसे सेलेक्ट हुई थी ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट में पहले से, उसको भी उठा लिया, यानी कि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। ये इसी तरह से आप लिस्ट ऑफ फिगर बना सकते हैं। अगर कोई फिगर इंसर्ट किया, अभी तो फिगर इंसर्ट ही नहीं की, और अगर कोई टेबल इंसर्ट किया तो आप इसमें यहाँ से कैप्शन पहले इंसर्ट करेंगे, उसकी कैप्शन लगाने के बाद फिर आप उसकी लिस्ट इंसर्ट करेंगे, यानी कि आप यहाँ से फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करेंगे। अच्छा, तो ये रिवीजन इतनी ही टेस्ट कर लोगा। कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मैं लिंक दोबारा भेजता हूँ, एक बात रह गई।